Bismillahirrahmanirrahim. This is for the Foundation School. Vihari here. Assalamu alaikum class 6. How are you all? Class 6. Today we are going to start our poem which is included in chapter number 4, The Echoing Green, lecture number 1. So class 6, first of all, I will check your previous knowledge that who is the poet of this poem. The William Blake is the poet of this poem. Who was William Blake? Where he lived? वो कौन था और वो कहाँ रहता था? So, first of all, I'll share the objectives of this lesson. After this, you will be able to know the meanings of difficult words. You will be able to know about the poet, and you will be able to explain the poem into your own words, and you will be able to write the summary of this poem. First of all, I will tell you about the poet William Blake. जैसा कि मैंने previous knowledge में भी क्वेश्चन किए, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो इसके बारे में. So, विलियम ब्लेक जो है वो 1757 में पैदा हुए थे and he lived in London for all but 3 years of his life. When he was a young boy, his parents realized that he was most interested in art. So उन्हें लगा कि वो आर्ट में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है. So they sent him to painting lessons. उसको पेंटिंग के लेसन्स में भेजा गया. When he grew up, जब वो बड़ा हो गया, he worked as an artist for a printer. Blake was a poet, painter. वो artist भी था, painter भी था. He was an English poet and he was a printmaker also. He believed in equality. उसे जो है बराबरी पे वो यकीन रखता था and wrote poetry that could be understood by everyone. तो वो ऐसी poetry लिखता था जो कि हर कोई easily उसको समझ सके. So ये poem जो है Echoing Green जो विलियम ब्लैक की है. So first of all, I will share the words meanings. Echoing, echo मतलब होता है गूंज. तो echoing जो है वो इसकी फोर्थ फॉर्म है. यहाँ पर गूंज रहा है. थ्रश जंगली चिड़िया को कहते हैं, ठीक है. cheerful खुशगवार. oak एक दरख्त का नाम है. शाबलोत descent उतरना. weary descent उतरना. weary थका हुआ. skylark एक परिंदा है जो कि यहाँ ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. ये होता है skylark परिंदा, ठीक है. So let's start the explanation of this poem. The first stanza is about the morning. The sun does arise. अब यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें morning की बात हो रही है. And make happy skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound. While our spots shall be seen on the echoing green. तो इसमें जो है वो सुबह का मंजर पेश कर रहा है कि जैसे ही रोशनी फैलती है तो आसमान इस तरह से खुश नजर आता है, स्पार्कलिंग और चमकदार नजर आता है. खुशियों की घंटियां बजती हैं, ठीक है. परिंदे जो है वो सिंग करते हैं लाउडली एंड द बेल्स चीयरफुल साउंड. while our sports shall be seen on the echoing green. मतलब echoing green को मतलब वो एक पार्क के साथ रिलेट कर रहा है. दैट हमारी गेम में जो है हमारे खेले जो है वो अब शुरू हो जाएंगी. So old John, एक बूढ़ा आदमी, and with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys, when we all girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. अब वो कह रहा है कि ये पोएम जो है वो एक यंग बॉय की लिखी हुई है. मतलब जो पोएट जो तब यंग था उसने तब लिखा, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ओल्ड जॉन जो बूढ़ा आदमी है वाइट बालों के साथ, वो ओक ट्री के साथ बैठा हुआ है अपने पुराने दोस्तों के साथ. तो मतलब वो देख रहा है, उनके खेल पर हंस रहा है. एंड ही सेइंग दैट सच वर द जॉयज. यही खुशियां थी जो हम भी जब जवान थे, हम जब यंग थे, बॉयज और गर्ल्स थे, तो हम भी यही कुछ किया करते थे, इसी तरह से लाइफ को एंजॉय करते थे. The little ones weary, no more can be merry. अब जो है लिटिल वंस इस तरह की सबसे छोटा बच्चा जो है वो थक गया है. नो मोर कैन बी मेरी. अब मतलब वो इंसिस्ट करेगा कि हम जो है घर जाएं. द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट
हैव एन एंड। अब वो जब सन डिसेंड मतलब सूरज गरूब होना शुरू हो गया है, सूरज उतरना शुरू हो गया है, एंड स्पोर्ट्स हैव एंडेड, तो हमारी गेम जो हमारी खेलें जो हैं वो भी खत्म हो गई हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक birds in their nest are ready for the rest, and sport has no more seen on the darkening green। अब वो ये कह रहा है कि शाम हो गया, डार्कनिंग ग्रीन मतलब अंधेरा फैल रहा है, डार्कनेस आ रही है। तो अब जो है बच्चे जो है अपनी माओ की गोद में जाने के लिए बेताब हैं। तो बर्ड्स जिस तरह से परिंदे जो हैं अंधेरा होते ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और परिंदे भी रेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और अब गेम्स जो हैं खेलें जो हैं उनकी वो भी खत्म हो चुकी हैं। सो इसमें क्या है, दिस पोएम इज बाय विलियम ब्लैक, इज रिटन इन द एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। इसमें नेचर को भी डिफाइन किया गया है कि जैसे बर्ड्स का जिक्र है, इसमें एकोइंग ग्रीन का है। इन सिंपल टर्म्स जैसे हाउएवर इफ वी गो डीप इनटू इट वी विल फाइंड द थीम ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। मतलब कि यही हमारी लाइफ है कि मतलब पहले जो है एक जैसे एक दिन जो है वो ढलता है, उसके बाद शाम को जो है सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। इसी तरह से हम लोग जैसे सूरज शुरू होता है, खुशियां हर तरफ बिखरी होती हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा दिन गुजरता जाता है, तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो सब लोग जो है रेस्ट को चले जाते हैं। इसी तरह से इसको हम अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि हम पैदा होते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, बड़े होते हैं, ऐसा ऐसा खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े होते हैं तो हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो ये अपना वक्त याद किया जाता है। उसके बाद जो है मतलब कि डेथ जो है वो एक फानी, मतलब कि दुनिया जो है ये फानी है, फिर इसने जो है खत्म हो जाना होता है, मतलब इंसान को जो है एक ना एक दिन मौत आनी होती है, तो सब कुछ खत्म होना होता है। सो द पोएम इज टोल्ड बाय अ यंग ओल्ड बॉय who is playing in the echoing green park. The poem has been divided into 3 parts. इसके 3 stanzas हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में भी, which if we go deep that the 3 stages of life को ये डिफाइन कर रहा है। 3 stages को, एक तो जब माँ की गोद में बच्चे जाने के लिए बेताब होते हैं, फिर जो है एक जब यंग एज होती है, उसके बाद ओल्ड एज के बारे में, ठीक है। So each stanza is divided into 10 lines and rhyme scheme इसकी जो A और B भी है। So another interesting thing जो कि worth noticing है इसमें is that the stanza and on the echoing green, जो first 2 stanza है वो end हो रहे हैं on the echoing green पे, और जो final stanza है, जो last stanza है वो end हो रहा है darkening green पे। तो मतलब green सब पहले तो जो है ग्रीन पे है, उसके बाद डार्कनिंग, मतलब कि जब अंधेरा छा रहा है तो वो फिर इसको डार्कनिंग से जो है रिलेट कर रहा है पोइट। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो हियर इज योर असेसमेंट। सो व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, मतलब फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा टाइम है दिन का। इन द फाइनल स्टैंजा व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, थर्ड पे है। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। एंड व्हेन ही बॉर्न एंड व्हेन ही डाइड, व्हेन ही वाज बॉर्न एंड व्हेन ही डाइड, मतलब कि वो कब पैदा हुआ था और कब उसकी डेथ हुई थी पोइट की, विलियम ब्लैक की। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे। सो आई होप आपको अच्छी तरह से इसको समझ आ गई होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।